کہ شوق جہاد پیدا کرن چسی سب کنے حالات خراب نے جنہوں دے جنگ دے حالات بنے نے تسی بھی بڑیاں محفل اٹینڈ کیتیاں ہونگیاں کوئی ساڈا کلام بدلیا اسی اتھے ہی ہاں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا اتھے حضرت جنگ بوئے کھلوتی اے گڈیاں چڑھن ڈیاں ککھ ہوئی اللہ سانو معاف کر دے ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے اصحاب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک فلسطین کشمیر امت کا حال دیکھو نماز چھوڑ دی امت اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں نہیں پتر بڑی دور سے آیا ہوں بھائی ہوں آپ کا بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر عمل کی طرف آؤ حضرت عمل کی طرف آؤ عمل کی طرف آؤ حضرت مسجد جاؤ نماز دی طرف آؤ محبتاں کرو پیار کرو قوم بنو چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے کوئی آپس ہی لڑن دے اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑھے ہے جنہاں دے پڑھنے سانو دندنان دے پھرن دے مودی کی باتیں سنو ہے یہ اتنے جوگا میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے تیری اتنی ہمت تو ہمیں لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل انہوں نے بھی پتا ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے سندھ کی بات تو بہت دور ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں راوی جو تروپا پانی نہیں ہے ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت ہم ان کو دریائے نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے وجہ کی کسی قوم بن سکے اللہ کا واسطہ اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ ٹھیک ہے اس شخصیت پرستی لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو سکتی میں کہتا ہوں جو مرضی آ جائے کسی کے لیے بھی نماز سے بڑا ہے کوئی ہوتا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی نماز سے بڑا ہے اب نماز کے لیے بیٹا اس گھر میں تیز نہیں چل سکتی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ اگر ہم میں خدا پرستی اتنی سی بھی ہوتی تو جو کچھ آپ نے یہ میرے لیے کیا ہے آپ کبھی بھی کرتے کہ آپ کے سینوں میں یہ بات موجود ہونی تھی جو آ رہا ہے وہ بڑا نہیں جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کا گھر بڑا ہے وہ بڑا ہے اس لیے پتر سنیوں اللہ دا واسطہ اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ بھی چھوڑا چھوڑ دو اب ان چیزوں کو ٹھیک ہے ہر معاملے کا دھیان رکھو محبت کرنی ہے اگر کسی سے تو پہلے دھیان رکھو کہ آپ کدھر ہو آپ کہاں ہو آپ کس جگہ پہ موجود ہو مجھے تو ذرا خوشی نہیں ہوئی میں تو کیونکہ بچوں نے بلایا ہے تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں بس الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو وما علینا الا البلاغ کہہ کے واپس جاؤں میں تو دیکھ دیکھ کے حیران تھا کہ آپ کر کیا رہے بندے نے میں نے تو بس نہیں آپ کو میں بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوں یہ کوئی آئے تو 2-3 سال پہلے یہ معاملہ ہوں تو نکلو ان ساری چیزوں سے باہر پتر کوئی بھی آئے کیسا بھی آئے اس گھر کا پروٹوکول توڑو یہ بہت بڑا نام ہے سیدنا ذنون مصری ہے سیدنا سفیان ثوری سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو ٹگے کو ٹھیک اور سوری بیل والا اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث
बैल वाला कैसे बन गया? क्योंकि इस घर का प्रोटोकॉल है कि जब इस घर में आना है तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ के अंदर दायां कदम रखना है। ठीक है, ये इस घर का प्रोटोकॉल है। लेकिन लिखा है सैयदुना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तवज्जो नहीं थी, बेदहानी थी, बेतवज्ही थी, तो दायां कदम रखने के बजाय आपने मस्जिद में पहले बायां कदम रख दिया। और जैसे बायां कदम रखा तो गैब से आवाज़ क्या आती है, ओ सोर ओ टगया की होया तेनू साडे घर आन दे अदा भी याद नहीं रहे है। तो ये जो कुछ आप कर रहे थे, पता नहीं हमें क्या आवाज़ आ रही होगी। वो जानवरों से भी बदतर लोगों, हो सकता है हमें ये आवाज़ आ रही हो। वो जानवरों से भी बदतर लोगों, ये क्या कर रहे हो कि इंसान के लिए तुम भूल गए कि तुम अल्लाह के घर में बैठे हो इस वक्त। तुम भूल गए कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। क्या कर रहे हो कि इंसान के लिए ये क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिए उनके लिए अल्लाह कहते हैं वह उबरियुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे इज़्न न कर दे। मैं तो पुत्रकारी का नहीं सकता, मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। मैं तो आपसे भी आम हूँ, चलो एक टैग लग गया मेरे साथ। जो कर सकते हैं, जो इख्तियार वाले हैं, अल्लाह उनके लिए कहते हैं बिइज़्निल्लाह, मेरे इज़्न न कर दे, मेरे हुक्म न कर दे। पुत्र मैं तो कारी का नहीं सकता है, क्यों आप हमारे लिए इस तरह की हरकतें करते हो? नहीं, ये क्योंकि गलत है। नहीं, हर मोहब्बत पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को गालिब करो, फिर बात बननी है। नहीं तो उतनी देर साडा कख भी बनना। और ये तकरीबन हर दूसरी मस्जिद में इसी तरह होता है, पता नहीं मैं, लेकिन क्योंकि इसमें कसूर कुछ हमारा भी है, हमने भी आपको शख्सियत परस्ती में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 77 साल हो गए, हमारे स्टेजों पे आज भी यही मौजू है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हला हज़ारों मौजू किताबों में पढ़े चीख रहे हैं, ओ सानू भी बोलो, ओ सानू भी बोलो, ओ सानू भी बोलो, ओ सानू भी बोलो। और ये भी मौजू हमने आज तक आधा ही बोला है। आगे अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून बोला, जितने नंगे, जितने गालियाँ देने वाले, जितने बेनमाज, सारे हमने वली बना दिए। क्योंकि हज़रत बात मुकम्मल नहीं ना, एक आयत में शान विलायत है, अगली आयत में मेयार विलायत है। शान विलायत तो बोला है, लेकिन मेयार विलायत बोला बताया ही नहीं कि अल्लज़ीना आमनू व कानू, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, जो वली होगा वो अल्लाह से डरने वाला भी। आधा मौजू बोला हज़रत, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा जिन्ने नंगे, जिन्ने बेनमाज, जिन्ने चरसी पंगी जानी, वो सारे सब हसी चुक वली बनाए हैं। और उसका खुमियाजा अहले सुन्नत भुगत भी रही है, क्योंकि जो वली होगा वो तकवे वाला होगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, क्योंकि आपका मामूल था कि अब हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में जाया करते, तो हासिदीन ने एतराज़ किया कि हज़रत आप मुज्तहिद हैं, कितने कितने बड़े नाम आपके तलामज़ा में शामिल हैं, तो आप क्यों जाते हैं इस बाबे के पास? क्या चीज़ ले गई आपको बिशर हाफी के पास? तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं बैठा था तो मेरे पास 2 बच्चियाँ आ गईं और आके कहने लगीं कि इमाम साहब एक मसला पूछना है। और फरमाते मैंने कहा पूछो। तो बच्चियाँ कहने लगी इमाम साहब हमने अपने घर में खड्डियाँ लगा रखी हैं, कपड़ा बनाने का पुराना तरीका। तो जब रात को हमारे दिए में तेल ख़त्म हो जाता है, हमारा दिया बुझ जाता है, तो फिर हम क्या करती हैं, खड्डियाँ उठा के अपने सेन में रख लेती हैं और फिर हम चाँद की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। तो आपने फरमाया मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि जो कपड़ा दिए की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती है, धागा सीधा जाता है, घेरा ठीक लगती है, लेकिन जो कपड़ा चांद की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी ठीक होती नहीं है, अक्सर तन सीधी नहीं जाती, घेरा ठीक नहीं लगती। तो मसला ये था कि जब हम बाज़ार कपड़ा बेचने के लिए ले जाएं तो वह बताना ज़रूरी है कि इतना कपड़ा दिए की रोशनी में बना है और इतना कपड़ा चांद की रोशनी में बना है। और फरमाते उन बच्चियों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा मसला मुकम्मल? उन्होंने कहा नहीं, अभी पूछना है, पूछो। इजाज़त भी नहीं ली कि आया हम आपके दिए की रोशनी में कपड़ा बना लिया करें, तो क्या उनकी इजाज़त के बगैर उनके दिए की रोशनी में कपड़ा बनाना चोरी में शुमार तो नहीं होगा? इमाम साहब फरमाते हैं उन बच्चियों ने मुझे रुला दिया। मैंने कहा मसले का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ तुम आई किस घर से हो, तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है, तुम किसकी बेटियाँ हो? तो बच्चियाँ आगे से कहने लगी हम बिशर हाफी की बेटियाँ हैं। आप फरमाती हैं इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बिशर हाफी के पास जाऊँ, जिसकी छोटी छोटी बच्चियों का ये तकवा है, तो बिशर हाफी का तकवा क्या होगा? ये है मेयार विलायत साहब, ये है
अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल तकवे के बड़े बुलंद मुकाम पे फायज थे। भूख लगी थी, हाँ जी, पता नहीं कितने दिनों के भूखे थे। भूख भी ऐसी कि छुपाए ना छुपे। अब तो पुत्र देखते ही कोई नहीं ना, जो आया मुंह विच सुट लिया। स्पेशल जो नमाजी अहबाब है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा पुत्र, अपने लुकमों का बड़ा ध्यान रखा करो। एक गंदा लुकमा, 40 दिन की इबादत का सुरूर, बहुत ध्यान रखो पुत्र। बड़ा अपना ढिड सांभो और बड़ी अपनी जुबान सांभो। एवं जो आया चुक मुंह विच सुट लिया। अल्लाह करे मेरी कौम को ये बातें समझ आ जाए। मुझे पता नहीं जुमरे का मिजाज क्या है, लेकिन आप इस वक्त सियालकोट के जिस फिल्टर पे जाएंगे ना, आपको अच्छे भले बंदे गाड़ियों पे, एनजी फॉर्च्यूनर पे, एमजी पे, टुक्सान पे, हैवाल पे आपको बड़ी बोतलें लेके ना पानी लेने आते हुए मिलेंगे, क्योंकि नई पसली सट चल दी आजकल। वैसे भी नेस्ले वगैरह का, एक्वाखिना का वैसे बाइकाट चल रहा है, तो आपको अच्छे खासे शुराफा मिलेंगे रात को फिल्टर पे पानी भरते हुए। मैं भी कभी कभी जाता हूँ अगर सियालकोट में, वो जिससे भी पूछो ना कि वो हाँ डॉक्टर ने कहा कि साफ पानी पिया करो, क्योंकि गंदे पानी नाल जिगर ते गुर्दे खराब हो जाते हैं। लेकिन दुख ये है मेरी बात, कौम को ये बात तो समझ आ गई कि गंदे पानी नाल जिगर ते गुर्दे खराब होंगे ने। पता नहीं ये समझ क्यों नहीं आ रही कि गंदे रिस्क से नस्लें खराब हो जाती हैं। गंदे रिस्क से, गंदे खाने से नस्लें खराब हो जाती हैं। ये तो समझ आ गई कि गंदा पानी जिगर और गुर्दे खराब करता है। पता नहीं ये क्यों नहीं समझ आ रही। क्योंकि हजरत अब तो मेरे पाकिस्तान का ये हाल है, कभी 2 नंबर चीज़ को भी लोग मायूब समझते थे, अब तो 6-7 नंबर चल रहे हैं, चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सारी। ढूंढने से आपको खालिस चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे ये सर पे हेयर फॉल का थोड़ा इशू है। मैं उस दिन डॉक्टर साहब है उनके पास चला गया, उन्हें चेक वगैरह करके कुछ चीज़ों से रोका। मैं नींद पूरी किया करें, पानी ज़्यादा पिया करें, खाना वक्त पे खाया करें। मैं इनमें से कोई चीज़ भी नहीं कर सकता। सर पे इमामा ना बांधा करें, सादी सी को टोपी ओढ़ दें। बहरहाल दवाइयाँ लिख दी। अब ये भी बड़े दुख की बात है, अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो गुस्सा ना कीजिएगा। साढ़े यहाँ डॉक्टरां दी दवाइयाँ लभदियां भी सिर्फ सामने दुकान तो, थोड़ा जगे पीछे टुर जो तो दवाई भी लभदी। तो इसलिए मैंने कहा आगे जाके जो पीछे आना है तो फिर इतों ही ले लेने। मैं वो गया, आपकी तरह उसने भी मोहब्बत की, पहचान लिया। तो मैंने वो दवाइयाँ निकाल रहा था, तो मैंने एवं शुगल में उसको कह दिया, मैंने कहा देखी कि 2 नंबर ना दे दे। तो मैंने वो हंस के कहता हजरत साहब 2 भी लभ जे तो बड़ी गल है, हूँ तो 6-7 नंबर चल रहे हैं। ये पुत्र हमारा हाल है। इस्लाम तो 2 नंबर की भी इजाज़त नहीं देता कोई, हम 6-7 नंबर पर चले गए। तो गंदा रिस्क, नस्लें खराब और हो भी गई हैं जी। बच्चे बात ही नहीं सुनते कोई, और उसमें बहुत बड़ा कसूर जो उनको खिला रहे हैं उसका। बच्चियां बात नहीं सुनती कोई भी है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो उनको खिला रहे हैं वो अंदर से बोल रहा है। फिर उस गंदे रिस्क ने तबाह कर दिया। बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चे सुनते नहीं हमारी। लेकिन वजह क्या है कि खिलाया हमने उनको। ना पुत्र गंदा लुकमा खाओ तो ना गंदा लुकमा खाओ। ना खाओ तो ना खाओ। जो लेके जाओ पुत्र हलाल का लेके जाओ। हलाल में ऑप्शन मौजूद है। अब मेरे पास इस वक्त जी किसी को नोट है तो दियो जरा, मैंने बंदा दो जरा पैसे। ये अगर आपने हलाल का कमाया है ना, तो ये 1000 से 1 लाख भी हो सकता है। ये 1 लाख से 1 करोड़ भी बन सकता है, और ये 1 करोड़ से 1 अरब, और 1 अरब से 1 खरब भी बन सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हलाल बढ़ता है। हलाल लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा 1, किते किते 3, गां 1 किते जोड़ा, ऊँटनी 1 किते जोड़ा। और हर रोज़ लाखों की तादाद में बकरियां, ऊँट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, काता कोई। लेकिन हजरत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊँटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा? बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज़्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल
اور حرام اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں. لیکن بڑے بڑے باکمال لوگ ہیں, سفر بیمار کرتا ہے, تھکا دیتا ہے, بوڑھا کر دیتا ہے, لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے باکمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں ایک دفعہ نارووال تھا, پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا, سردیوں کے دن تھے, اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ایسے, چلو گرمی ہے نا سمجھ آتی ہے, ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی یار پا چڑھ دے, اور ایسے چلو ورکا چڑھے جانا, انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا, پانی چوندا ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا, گیلے ہار ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے. پھر اسی بھی چوپ کر کے پوا لینے ہیں کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں, انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی سب غصے میں آ گئے, یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے یار پائے دینا. کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں, تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاتے, یہ بھی ادھی کٹ دی. میں چپ کر جاتا ہوں, اچھا چل یار کرن گے تے پڑھن گے بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, بہت کٹنگ ہوتی ہے, فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو, لیکن چپ کر جاتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. وہ ہم گئے پسرور, ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا, آگے نارووال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں, کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن, تو آپ اس طرح کریں, آپ ٹریول کرتے آئیں, یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا, اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا, وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارے. ہم پہنچ گئے, ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا, اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں, وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا, میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ, جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی, پتیسا, وہ سینگنیاں, وہ گچک وغیرہ, اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا, میں نے بابا جی کو پکار کے کہا, میں نے کہا بابا جی کو پا دبا برفی بھی کر دیو نا. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی, ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے, کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی, لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا, لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا, اس نے کیا کیا, پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی, تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا. اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے, جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے, دوسرے پاسے انہوں نے وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا, لیکن انہوں نے کی تھا, انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ دے اتے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا واہ واہ, جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا, کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو, اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا, اور اس نے اس کو کیسے کور کیا, اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے, کاغذ تلے. ساڑیاں بیکریاں نے تو پورا ڈبہ تول چڑھتے ہیں, ایتھے تو پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری, لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نے. 80 گرام دا ڈبہ, 60 گرام دا ڈبہ, میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے در جی کا دے وزن چ, برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا, تو تھوڑے سے گھبرا گئے. تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے, میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھتے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہوئے ہیں. سونا رزق پتر, سونا رزق کھڑو اپنے گھر, اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں, سوچیں بگڑ گئی ہیں, فکریں بگڑ گئی ہیں, انداز بگڑ گئی ہیں, دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے آؤ,
हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बल खुद तकवे के बहुत बड़े मुकाम पे फायज, भूखे के भूख छुपाए न छुपे। घर आए, बच्चों की अम्मी से कुछ तलब किया, पूछा कुछ खाने को है, उन्होंने कहा कुछ नहीं। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया, उन्होंने मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आए और ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दी। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया? बीबी साहब ने अर्ज़ की कि फलां फलां घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क़ तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क़ ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। तो उसने कहा ये क्या मामला के? उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्हें कहा जेड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे हज़रत। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे ने। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, आटा नहीं मिला। पूछिए आटा कितने गया? उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना, असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने किया, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी। जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई भी जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी। इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं है जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। अलग क्या मिलता है? मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, उस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया। इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकते हैं, क्या कर लेगा? मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली, करम उथू ही होने, करम ना MPA आपे काम आना ही, ना MNA ने आपे काम, करम उथू ही। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली, लेकिन कोई नहीं पता। इत्थे वराना है, इत्थे आई कोई नहीं, उथे रौनकां लगियां ने। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। खाओ थके यार, बोला ही नहीं गया। बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का। इस घर के क्या कहने बच्चे, किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सवाई होगी तो जो ज़र्रात, जो तीले, जो कख इकट्ठे होंगे, उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने आदाब है, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है। और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना है? जेड़े आने वाले ने उन्होंने भी कोई नहीं पता किवें आना है। ऐसे जिवें आंदे ने उवें ऐसा बंदा कोई एक महीना किसी MPA या MNA दे घर आन जान लग पे तो झुमरे च उहदा भी रोब हो जाता। लोग कहते हैं भाई
سانوں جننے اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہیں ساڈا تے بنیا ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا. وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے. وہ تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلی کی بھی ڈیوٹی کی ہے. ان کے پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڈے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ جو کو دند دے. سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ، لیکن وہ باز ہی نہیں آندے. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گل تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا. چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں. لیکن تیار رہنا ہے ہم نے. یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8. لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6. لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ؟ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے. جب پتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا؟ آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا؟ چھوڑ تو ہم نے بھی دیا، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لیں. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے؟ کو قرآن بھی تے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت. ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. آج کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ انہوں کو کوئی جواب دے چھوڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری باری قرآن میں دیکھیں
फिर मैं एक बार पूछांगा, जवाब दईओ जरूर, उच्ची ना दईओ, मट्ठा दईओ जरूर। कितनी देर हो गई आखिरी बारी कुरान शरीफ में वेखी? कुरान आपके ख्याल में क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे इस बातों पे, इन्हीं बातों पे सिर्फ खुश हैं कि हम उम्रे बड़े कर रहे हैं और हम महफिलें बड़ी करवा रहे हैं? और जिन बातों से वो खुश होते हैं उन बातों की तो हमें हवा नहीं लगी कोई भी। जिन बातों से वो खुश होते हैं उनकी तो हमें हवा नहीं लगी। मिसाल के तौर पे किन बातों से खुश होते हैं? वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाना ले तो खुश होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, वो माफ़ करना ले तो खुश होते हैं। क्योंकि आगे दसिया कि खुश कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो पुत्र मैं तो हैरान था, तुसी मस्जिद मुको मुकी होए सोनी बुल पाड़ चढ़े हुए एक बंदे। जिन बातों से वो खुश होते हैं हमें तो उन बातों की हवा नहीं लगी करती। और फिर उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ ही होती है कि हमारे गुस्से सिर्फ, चलो यार मज़ा तब था, ये गुस्सा फ़लस्तीनियों के काम आता, ये गुस्सा कश्मीरियों के काम आता, ये गुस्सा पाकिस्तान के काम, वो तुहानू पहुँचोगे एक दूजे ते ही आंदे ने। ये सियासतदान जो हजरत जो जिन्होंने खोखला कर दिया पाकिस्तान को, उनकी जूतियाँ उठाते हो तुम। मैं अपना जूतियाँ कहा है, लेकिन समझ लो कि मैं ओ क्या है, ओ चुक दे हो तुम सारे। मैं मस्जिद का लिहाज कर गया, अल्लाह का घर। जिन पे गुस्सा आना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी सड़कें बेच दी, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारे इदारे बेच दिए, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक चीज बेच दी, उन पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें, एक दूजे ते आंदा था। क्योंकि मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी रज के बुज़दिल हैं, क्योंकि ये बुज़दिल का काम है। उसको जब भी गुस्सा आएगा उसको कमजोर पे आएगा, ताकतवर पे गुस्सा आएगा। बुज़दिल है सब, मैं ना कोई वोट लेने ने या मैं ना कोई पर्चियां लेनी है, सीधी सच्ची बात है। ये बुज़दिल का काम है साहब। हाँ, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। आओ मुकदमा उनकी बारगाह में लेके जाते हैं जिनको दलेरों का शहनशाह कहा जाता है, जिनको आप भी अली के नाम से जानते हैं, जिनको मैं भी अली के नाम से जानता हूं। जहां से दलेरी और बहादुरी फूटती है, जहां से दलेरी और बहादुरी शुरू होती है, जो दलेरों के सर का ताज है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो ना, जो फौजी एजाज है, उसका भी नाम क्या है? निशान हैदर। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो उसको एजाज भी क्या दिया जाता है? निशान हैदर, क्योंकि हैदर दलेरी का दूसरा नाम है। उनकी बारगाह में चल के फैसला करवा लेते हैं, हुजूर सानू दसो असल दलेर कौन है? तो मौला अली क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नेक वो नहीं जिसकी महफिल नेक है, नेक वो है जिसकी तन्हाई नेक है। अकवाल तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ दो पढ़ देता हूँ। फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया दलेर हो नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए, दलेर होवे जड़ा गुस्सा पी जाए। और सानू आंदा है, पीना आंदा, और स्पैशल जगह माड़ा होए तो फिर तो पीन का सवाल ही नहीं उठता। और दुख है कि आंदा भी माड़े उत्ते, चिंची वाले पे आएगा, रेड़ी वाले पे आएगा, सब्जी वाले पे आएगा, बीवी पे आएगा, माँ पे आएगा, माड़े पे आएगा। लेकिन तगड़ा वैसे जैसा मेरे पाकिस्तान के डायलॉग सुनो, ऐसे ऐसे डायलॉग कि जनाब इसराइल वाले ने डायलॉगों का इंग्लिश तर्जमा करके दसीए तो कभी मुँह ही ना करना दर्द। और पाकिस्तान के किडे वे पन्ने हाँ वसते, लेकिन सिर्फ डायलॉग। गुज्जर दा वैर, गुज्जर दा अथरा गुज्जर, बुढ़ा गुज्जर, जट दा गंडासा, महर दा खड़ाक, भट्ट बदमाश। लेकिन दुख की बात है ये जो कुछ भी है सिर्फ एक दूसरे के लिए है। जो कुछ भी है एक, मैं भाई आपे गुज्जर बरादरी है, मैं सब तो पहले अपनी बरादरी का नाम है, कोई किसी का डर पार नहीं है। मैं कल नूं जाके अपने गल में फड़वाने ने, मैं अपनी सीधी बात करूँ। याद रखी भाई जी, इत्थे को गुज्जर बैठा है, सब तो पहले दलेरी का मैडल मैं तेरे सीने ते लावांगा। याद रखी उस दिन अपने आप नूं दलेर कहीं जिस दिन तू जिथे रहना है तेरे महल्ले च कोई किसे ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए, नहीं नहीं भाई इत्थे गुज्जर रहिंदा है, समझी मैं दलेर हां। जे तेरे रहिंदियां तेरे हुंदियां किसे माड़े ते जुल्म हो गया तू दलेर, क्योंकि बटन खोल के ते लत्तां चौड़ियां करके टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा, चार पिछे किराए दे बंदे ला के टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा। और जट्टा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन तेरे महल्ले च कोई माड़े ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे जट रहिंदा है। और मेरा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी
जिस दिन किसे माड़े थे, किसे यतीम थे, किसे गरीब थे, कोई जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे मैं रहिंदा है। ओए बट बदमाश, उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े थे कोई हथ पाण तू पहले ऐ सोच के बाज आ जाए कि इत्थे बट रहिंदा है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का कोई रंग, असी जो कुछ भी हाँ। गुजर ने भी जदू वैर लिया किसे गुजर नाल ही लिया, बट ने भी जदू बदमाशी की थी किसे अपनी ते की, जट साहब भी जदू गंडासा लैके आए किसे। असा मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर है। बहुत बातें सीने में ऐसी दफन हैं जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलम दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देते हैं। जैसा बात कुछ होती है, उंदा कोड़ा है बना फड़ के खोता चढ़ देने, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं। जैसा नहीं जी, कैमरे बंद करवाऊंगा, कहेंगे देखो जी उन्होंने कहता प्यार करो तो आप बहुत परेशान हुआ सामने। मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ, यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझसे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिसमें लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं, मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पे। इसलिए जो मर्ज़ी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू। 30% मोहब्बत है मुझे, 60 है। अगर आपको 40 है तो मुझे 80 है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कश्मीर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दर्द मुझे तकलीफ दे रहा है। 77 साल हजरत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाज़ें देते रहे, ओए ओए ओ वैर रहन वाला गुजर, ओए इत्थे भी ते कोई है ना नवीं ते वैर लवो। 77 साल वो आवाज़ें देते रहे, ओए जट्टा ओए असीं तेरे गंडासे नूं उडीकने पे, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आना, ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आना यार। वो मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कट। वे है पेशाब पीण वालियां ने, पत्थर पूजन वालियां ने, गां नूं अम्मा कहण वालियां ने, वे साडे नाल की सलूक कीता, साड़ियां धीआं चुक के लै गए, साड़ियां भैणां लै गए। हैं जी, कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हां दा बुल नहीं पाड़िया। और मनूसो जी तू पाड़ दे, अपने ही पाड़ दे। हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी। 70 साल हो गए एक दूसरे नाल लड़न दे, बल्कि अब तो बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई है हजरत, हूँ तो भरा भरा दा मारू है। हर साहब इतना सोहना रिश्ता है भाई, हैं जी। जब मोहब्बतों और रिश्तों की बात चली तो अल्लाह ने भाई को कितना नंबर दिया। उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे, 3रा नंबर। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, किनवा नंबर है? पुत्र तो बाद अल्लाह ने किदा नाम लिया? और सब कमाल देखो, फिर भरा तो बाद बुढ़ी का नाम लिया, व अज़वाजुकुम, भरा दा पहले ते बुढ़ी दा। लेकिन इत्थे की होया हजरत, इत्थे हुण बुढ़ी आबाउकुम तू भी पहले भी। इतना सोहना रिश्ता, लेकिन दुख ये है कि हम कुरानी फिक्र पे चल सके नहीं। जो कुरान ने मिजाज अंदाज दिया हम उस पे चल सके। कुरान ने तो कहा था भाई से प्यार करना है, 3रा नंबर भाई को दिया, लेकिन हम कहां तक निकल आए। आज हजरत जब भी भाई की बात छिड़े तो हम क्या कहते हैं? मेरा की ये, तुसी बोलना मैं नहीं बोलना, तुम सारे नूं पता है। मेरा की ये शरीक है, मेरा की ये। कुरान कह रहा भाई ये, असी की कह रहे हैं? शरीक बना ले। हाँ जी, असी शरीक बना ले। और साहब असी जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियां लिखी बेवकूफ जी हैं, पागल जी होंगी, लेकिन अदर जी असी बेवकूफ हाँ, वो सियाणियां निकलियां। अदर साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके।
ना भरा बचा सके, ना भैन बचा सके, ना माँ बचा सके, ना ही प्यो। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों नूं की दसिया, उन्हें तेरे मेरे अपने बच्चों नूं अपने भरा नूं की पढ़ाया सिखाया। मामू की हुंदा है? चंदा। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਖਾਲਾ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਫੋ ਡੈਡ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਨਾਨੋ ਅੰਮੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਦੂਗਰਨੀ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ साहब, मैं अगर गलत कहां तुसीं मैनूं टोक सकते हो। तुसीं कहोगे तुसीं मिसबाई साहब गलत कह रहे हो, इंज किदूं है। साडी मां हांजी ओहदे अबू ना अबू ते साडे अबू, लेकिन क्योंकि कसूर ओहदा नहीं, वो ठीक है अपनी जगह। मैनूं गलत नहीं कहांगा, है भी एक लिहाज ना गलत है, लेकिन इस लिहाज नाल ठीक है। उन्हें अपने बचाए ने, तू अपने बचा सकिया क्योंकि भरा ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਸੀ। ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੱਸ ਸੀ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਰ। ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਵਾ ਇਖਵਾਨੁकुम और सब लड़ाइयाँ भी उदों ही होंदियां ने जो बिलो रानी आती है, क्योंकि बंदे को मैनेज नहीं ना होता, क्योंकि कुरान कुरानी फिक्र है ही कोई नहीं है। हाँ जी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छवीं सतवीं कुछ। हाँ जी, बल्कि हमारे बच्चों को नज़में पोएमें क्या पढ़ाई गई। हाँ जी, चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने बजाया चूहा नीचे आया। जिस कौम ने नज़में चूहों वाली पढ़ी हैं, उस कौम ने खे इकट्ठा करना है। नज़म भी क्या पढ़ाई है? टोट बटोट के दो मुर्गे थे। इंग्लिश में पोएमें क्या पढ़ाई गई? हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। तुसी भी ऐसे मलंग हो, तुसी भी कभी नहीं आज तक इन्होंने पूछा हमटी डमटी है कौन है? क्या ज़रूरत पड़ गई हमें उधार के करैक्टर लेने की? हाँ जी, मिस्टर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर सैयदुना मीर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नाम नहीं ख़त्म होंगे। सुती कौम। आज भी मेरे बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं, वो मेरे कल मिस्टर अबू बकर ने, मेरे कल मिस्टर उमर ने, मेरे कल मिस्टर उस्मान ने, मेरे कल मिस्टर अलीउल मुर्तज़ा ने, मेरे कल मिस्टर हसन ने, मेरे कल मिस्टर हुसैन ने, मेरे कल मिस्टर अबू ज़र ने, मेरे कल मिस्टर मुसअब बिन उमैर ने, मेरे कल मिस्टर अमीर हमज़ा ने, मेरे कल मिस्टर जाफ़र तैयार ने, मेरे कल मिस्टर साद बिन नबी वक़ास ने, मेरे कल मिस्टर गौसे आज़म ने, मेरे कल मिस्टर सलाहुद्दीन अयूबी ने, मेरे कल मिस्टर तारक बिन ज़ियाद ने। क्यों लोड़ पई सानू उधार दे करैक्टर लैन दी? इसलिए अब एक घंटे में मैं क्या क्या अपना दुखड़ा रोऊं हज़रत है। हम कौम बन सके, अल्लाह जिनके नाम पे इकट्ठे हुए हैं, जिनकी नातें पढ़ते सुनते हैं, अगर उनके दरबार में जाएं तो वहाँ रंग ही बखरे हैं। हम भाई को शरीक बना बैठे, हमने बहन पे अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, मरन जीवन मका चढ़े ऐसी हजरत। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज मुबारक, जंग बदर लड़ी गई, 70 कैदी पकड़े गए, लाके उनको मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी के सतूनों से बांध दिया गया। ड्यूटी लगी हजरत बिलाल की। बिलाल ध्यान रखना है, कोई रस्सियाँ खोल के कोई मामला ना करे। हजरत बिलाल ड्यूटी पे है। फरमाते देखता क्या हूँ, थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाएँ, चेहरे अनवर पर बेचैनी के आसार हैं। कैदियों को देखें फिर तशरीफ़ ले जाएँ, फिर तशरीफ़ लाएँ, चेहरे अनवर पर बेचैनी के आसार हैं। कैदियों को देखें फिर तशरीफ़। काफ़ी बार इस तरह हुआ। कहते मैंने फ़ैसला कर लिया, अब अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सोने हो हुक्म तो करो, बार बार तशरीफ़ ले आ रहे हो, बेचैन हो। अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ़ लाए, कैदियों को देखा। जब वापस जाने के लिए मुड़े तो मैंने कदम बोसी करके अर्ज़ की, सोने हो हुक्म तो करो, महबूब आका मौला हुक्म। तो आगे से अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, बिलाल फिर एवें कर, इन्हां दियां रस्सियां थोड़ियां थोड़ियां पोलियां कर दे, मैनूं नींदर नहीं आण डई। हाँ जी, काफिर हैं सारे के सारे। हुजूर फरमा रहे रस्सियां नरम कर दे, मैनूं नींदर नहीं पैण डई। ओए भरा नूं शरीक बना के किवें नींदर आ गई तुहानूं?
ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਨਾਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋ ਮੰਨੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੋੜ ਛੜਿਆ ਜੇ ਸਾਰਾ कुछ जी। वहाँ अली का कातल अली के सेन में खड़ा है, इब्न मलजम जिसका नाम है। हजरत अली की बारगाह में पानी लाया गया, ध्यान पिया, फरमाया अली दे वेड़े खलोता है, पहले पानी इनू पिया। तेरा मेरा वेड़ा किड्डा बदनसीब वेड़ा है, जिथे अपने पानी पी सकते, जिथे अपने पानी पी सकते, और उन्होंने दे वेड़े किड्डे सोहने वेड़ जिथे कातलों भी पानी पियाया गया। इसीलिए तो फिर मुझे इकबाल याद आता है ना, इकबाल ने एवं तो नहीं रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम, तानू ते हवा नहीं लगी है, तुसी ना दे नक्शबंदी, तुसी ना दे चिश्ती, तुसी ना दे कादरी। हाँ जी, गौसे आजम के लिए मैंने पढ़ा, हुजूर गौसे आजम बाजार से तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन अंदाज क्या है, खुद को चादर में छुपा रखा है, जिवें हुण तुसी कीता है, ताकि इंज होए ना किसी नूं धक्का ना वजे, किसी दे पैर ते पैर ना आए, मेरी वजह ना किसी नूं तकलीफ ना। हुजूर गुजर रहे हैं, लोग भी गुजर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि चादर थले गौसे आजम नहीं लिखिया। उस टाइम बाजार 'च कपड़ा चोर खलोता सी, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ 'ਚ ਚਾਦਰ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, वो भी चल रहा है और अगे अगे गौस पाक भी चल रहे हैं। अब क्या गौसे पाक को नहीं पता था पीछे जो चल रहा है किस नीयत से चल रहा है, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब गौस पाक रश से बाहर निकल गए, अब उसके मुताबिक जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें फड़ के तो गौस पाक की चादर नूं खिंचिया, कुट के झटका मारिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं आखिया। अल्लाह की बारगाह च अर्ज करते ने, रब्बा फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सो, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई, फड़ी चादर भैड़ी नीयत लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई। अल्लाह फिर जो फाड़ी लई सूँ, फिर इंज दी रहमत करके मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। इकबाल कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही, असी हजरत अपने ते बूहे बंद कर ध्यान पिया, फरमाया अली दे वेड़े खलोता है, पहले पानी इनू पिया। तेरा मेरा वेड़ा किड्डा बदनसीब वेड़ा है, जिथे अपने पानी पी सकते, जिथे अपने पानी पी सकते, और उन्होंने दे वेड़े किड्डे सोहने वेड़ जिथे कातलों भी पानी पियाया गया। इसीलिए तो फिर मुझे इकबाल याद आता है ना, इकबाल ने एवं तो नहीं रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम, तानू ते हवा नहीं लगी है, तुसी ना दे नक्शबंदी, तुसी ना दे चिश्ती, तुसी ना दे कादरी। हाँ जी, गौसे आजम के लिए मैंने पढ़ा, हुजूर गौसे आजम बाजार से तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन अंदाज क्या है, खुद को चादर में छुपा रखा है, जिवें हुण तुसी कीता है, ताकि इंज होए ना किसी नूं धक्का ना वजे, किसी दे पैर ते पैर ना आए, मेरी वजह ना किसी नूं तकलीफ ना। हुजूर गुजर रहे हैं, लोग भी गुजर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि चादर थले गौसे आजम नहीं लिखिया। उस टाइम बाजार 'च कपड़ा चोर खलोता सी, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ 'ਚ ਚਾਦਰ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ, इंतज़ार करना है कि दुकान वाला जड़ा चादर वाला किसी सज्जी खब्बी दुकान च ना वड़ जाए, बाजारों बाहर निकल जाए। बाकी फिर दो तीन बंदियां दी परवाह कोई नहीं, वो भी चल रहा है और अगे अगे गौस पाक भी चल रहा है। अब क्या गौसे पाक को नहीं पता था पीछे जो चल रहा है किस नीयत से चल रहा है, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जब गौस पाक रश से बाहर निकल गए, अब उसके मुताबिक जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें फड़ के तो गौस पाक की चादर नूं खिंचिया, कुट के झटका मारिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं आखिया। अल्लाह की बारगाह च अर्ज करते ने, रब्बा फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल सो, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई, फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई। अल्लाह फिर जो फाड़ी लई सूँ, फिर इंज दी रहमत करके मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। इकबाल कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही, असी हजरत अपने ते बूहे बंद कर। हुजूर जुनैद बगदादी हजरत ने आना जाना, को मेरे वर्गा सी, उन्हें हजरत का जाहो जलाल वेख्या, उन्हें क्या लगता पीर हो रही, वाह भाई मीर, मुरीद जो ने वाह भी तो पीर हो रही, वाह भाई मीर। तो जो पीर होना ने शाह पढ़न जाना है, तो मैं पीर होना दे घर चोरी करनी है। गौस पाक सारे मुरीद खानका छड़ के नमाज पढ़न टुर गए, चोर ने कंध टप्पी दे अंदर, लेकिन अंदर आके की वेखदा है,
व रब दे रसूल दा ही नाम है, कख भी नहीं घर विच। कुरान शरीफ है, मुसल्ला है, तस्बीह है, लोटा है वुजू करन वास्ते, संजा करन लई, कख भी नहीं है। बड़ा हैरान परेशान होया, बगदाद दा सब तो वड्डा पीर ते घर उन्हें कि हुण आ गया वां, जाना मैं भी इंज नहीं, कोई ना कोई तो लैके जावां। वाह वाही लभ लूभ के लिखिया नूं हजूर जुनैद दा को कुर्ता लभ गया, उन्हें कुर्ता चोरी किया तो बाजार बेचन टुर गया, क्योंकि तब ये चीज़ें होती थी। यहाँ तक लिखा है कि मुर्दों के कफन चुरा लिए जाते थे। इसलिए जिस दुकानदार कल गया उन्हें कहा भाई कुर्ता तेरे को ले लांगा, लेकिन पहले गवाह लैके आके कुर्ता तेरा अपना है, क्योंकि तू गवाह ले आंदा। उन्हें कहा चल तू नहीं तो अगली दुकान वाला ले लेगा, अगली वाले नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। हुंदियां मैं बात खत्म करूँ, उस दुकान पे आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। उन्होंने जाके इन्होंने कुर्ता विखाया, भाई कुर्ता ले लै, सस्ता ही दे देंगे। उन्हें कहा सस्ते महंगे की गल नहीं, पहले गवाह लैके आके कुर्ता तेरा अपना है। गवाह है कोई नहीं। उन्हीं देर ते जुनैद बाहर आ गए, वेखते कि एक बंदे के हथ च आप दा कुर्ता है, दुकान वाले कहन दिया कि कुर्ता खरीद लै। वो कहन दिया पहले गवाह लैके आ, जो गवाह की गल आती तो चुप कर जाता। हजरत जुनैद गए और दुकानदार को कहने लगे मैं गवाही देता हूँ कि कुर्ता इसी का तू खरीद ले, थे तो आबा वो तुम्हारी। वो चले वो तो चोरा कज नहीं सकें, असी अपने गवा बैठे। कसूर बीबी का नहीं पुत्रा, कसूर तेरा ते असी नहीं बंदे रहे हैं। मैनू बहुत सियाणी कहांगा, उन्हें अपने रिश्ते मैनेज किए ने। अल्लाह उहदियां भाबियां दे नाल कोई चंगा सलूक नहीं करदियां, लेकिन कदी तेनू दसेगी, क्योंकि जिदन दसेगी तू कहना तो फिर जाया ही ना कर। बहुत सियाणी निकली है, उन्हें अपना रिश्ता बचा लिया। तू मैं अपना बचा सकिया, हला भरा हो वे हजरत, मैं अपनी अखा नाल मंजर वेखे। मुझे झुमरे का मिजाज नहीं पता, मैं सियालकोट का मिजाज, क्योंकि बिल्कुल सामने जम्मू है, ठीक है जी। और हमारे सर्दी जल्दी आती है हजरत, क्योंकि जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो सर्दियाँ जो सियालकोट का मिजाज की है, मूली वाले परौंठे ते नाल सब्ज़ चाह। मैंने खुद अपनी आँखों से ये मंजर देखा है। सवेरे पुत्र चले ने काम ते माँ की कहती सारे खलोईओ ना किते, ठंड बड़ी है, बारिश भी होन रही है, तो मैं मूली कंडा कर लाँगी, तो मूली वाले परौंठे ते नाल सब्ज़ चाह। हैं जी, मैंने अपनी आँखों से फिर मंजर देखा है। पहले निका आ गया, ज़ाहिर कट्ठियां तो नहीं आना, निका साहब तो पहले आ गया। माँ कहती है हथ तो थके आए परौंठे सुटदे, तो निका की कहता है मी की गल करते पे भैन नूं भी आ लेंदे हो, कलियां को परौंठे का मज़ा आना। बात गलत तो नहीं की मैंने, कदी वो हाल सी कि भैन बगैर परौंठा भी खाधा जाता, कदी भैन बगैर मूली वाला परौंठा भी खाधा जाता। मैंने अपनी आँखों से देखा, पहले वड्डा आ गया सारे। माँ कहती है थके आए हथ तो सुटते हो परौंठा, तो वड्डा की कहता मम्मी जी की गल करन दे, छोटियां नूं भी आ लेंदे हो, सारे वीर रल के खावांगे तो मज़ा आएगा। वो चले वो कदी भरा इन्ने प्यारे होंदे सन कि परौंठे नहीं सन खाधे जाते होना बगैर। वो अज कित्थे आ खलोते हो सारे, अज कित्थे आ खलोते हो। झुमरे छोटे ने जे किसी नूं धक्का मार दिता तो हजरत जी वड्डा बाहवां टोंक के लड़न टुर गया, तेरी जरूरत किवें हुई तू मेरे छोटे नूं हथ लाया। फिर एक वो वेला आया कि वड्डा आपे डांग लैके छोटे नूं लभण दिया। मैंने आपे वेख्या, मैंने अपनी आँखों से ये देखा, छोटे के सामने किसी ने वड्डे नूं कह छड़िया कोई आ चल तेरा वड्डा भरा, मैं छोटा एडा जिहा सी इधर पै गया। हजरत जी वो तेरी जरूरत, मैं तेनों पाड़ छड़ांगा, तू मेरे भैन वास्ते है बोले। फिर वही वेला आया, छोटा आपे बंदूक लैके भैन नूं लभण दिया। वजह क्या है, महफलें बहुत है हजरत साहब, लेकिन दुख दे नाल नाथां भावें मेरे तो नाराज़ होन, नकीब भावें मेरे तो नाराज़ होन, मर ते जाना एक दिन, कम अज़ कम इज्जत दी मौत मरीए ना। मैं हमने इनको शेर व शायरी के अलावा कुछ भी दिया, असी इन्हों एंड विच किते ना किते। फिर मुझे वो मुस्लिम और बुखारी की रिवायत याद आती है कि मेरा साहब दूसरे नंबर ते होना क्यों, मेरा दूसरे नंबर ते साहब होना क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। जुम्मे का सिर्फ ये मकसद है कि हज़रत हम इनको कोई कहानी सुना के घर भेज दें। जुम्मे का मकसद ये है कि जुमरा के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल पे गुफ्तगू हो। जुम्मे का मतलब ये है कि सियालकोट के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल पे गुफ्तगू हो। मिसबाई साहब उस पर गुफ्तगू करें हज़रत, लेकिन मिसबाई साहब भी नहीं करते। और दूसरा कसूर ये है कि इन्होंने मिसबाई साहब को, खतीब साहब को वो अथॉरिटी, वो सोर्स, वो ताकत भी दी नहीं है, इसलिए सब गड़मड़ हो गया। हमने अपनी महफिलें हज़रत शायरों के हवाले कर दी। एक नकीब जड़ा एक दिन मदरसे नहीं गया, इसम फेल हर्फ का वो
مفہوم نہیں بیان کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب وہ دی حضرت پوری محفل سے کنٹرول ہوتا ہے اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوتے سارے، اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت، اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اونجنو۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا، عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب، کتنا کتنے قصوروار مصباحی ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں، اور پھر میں ہمارے خوف کے بول رہا ہوں، سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی۔ مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت، وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب، میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت، میں لنگ کے جانا، میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت، میرے گھر دے بالکل کول انہاں دی مسجد ہے، میں لنگ کے جانا ہوں مسجد بھری پڑی ہے، باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت، لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نے حضرت صاحب، کیوں ہے ہی شعر و شاعری ہے، غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب، کیوں؟ کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے حضرت صاحب، وہاں 2 ٹوک بتایا جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی اللہ وقت لایا کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں، میں نے فیصل آباد پہنچنے کی جگہ ہوں۔ آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انصاف کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا، میری اصلاح کیجئے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں۔ کوئی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی، مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، 3 بار فرمایا، لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا، ہم نے ان کو یہ سنایا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ منڈے کملی کالی، ڈھیل دے دی، کچا شعر حضرت، لوکاں نے ڈرایا، حضور خود ڈرا رہے ہیں، ایک بار نے 3 بار ڈرا رہے ہیں، 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری، لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی، داڑھی نہیں رکھی، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی وال نے پاویں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی، اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی بلکہ کیا سنا دیا، اوپر سے شعر سنا دیا۔ حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھے، مصطفیٰ سنا حضرت، اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا، ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا۔ لیکن کیا ہوا، یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے، ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، وہاں پتر سورہ ہود اتری، ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے، لیکن علماء بیٹھے ہیں، سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا، تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا حضرت، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے، قرآن ڈرا رہا ہے حضرت، کیا کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم بکھرے ہو وہ، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا، مینوں روز حشر دا ڈرنا،
मैनू रोज हशर दा अल्लाह डरा रहा है कुरान में हजरत, और हमने इनको क्या सुनाया, मैनू रो लो। फिर उन्होंने वाकई कोई डर नहीं दिया, उन्होंने वाकई कोई डर, नमाज छोड़ दी, दाढ़ी छोड़ दी, हलाल हराम छोड़ दिया, माँ बाप का अदब करना छोड़ दिया, सिला रहमी छोड़ दी, क्योंकि आपे डराए हैं, आपे इन्होंने दसे। हमने तो यहां तक इनको सुना डाला, मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा पसीना। हम ही ने आपको सुनाया है, मैं जी जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी ना जाएगा। ओ उल्लू दे पठिया, कुरान कह रहे हैं जो तू नमाज ना पढ़ी, साया नहीं, तू पूरे का पूरा जहन्नम में जाएगा। फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछ रहे हैं, मा सलकाकुम फी सकर, तुसी आगे क्यों सड़न रहे हो, तुसी क्यों जहन्नम च आ गए हो। तो कुरान कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आ गए, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बस पुत्र ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले। असाब तानू मैनू भावें तकलीफ है या नहीं है, लेकिन मुझे ये सोच के बड़ी तकलीफ होती है कि इस वक्त हुजूर का कल्ब मुबारक, अब मैं उस सोने पाक दिल के लिए तकलीफ का लफ्ज़ बोलूँ मुझे खुद डर आता है बोलते हुए। इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम का कल्ब मुबारक, फ़लस्तीन, कश्मीर, उम्मत का हाल देखो। नमाज छोड़ दी उम्मत, इस वक्त ईमानदारी के लिहाज से 132वें नंबर पर खड़ी है। क्या आपके ख्याल में हुजूर इसी बात से सिर्फ हमसे खुश हैं कि महफिलें बड़ी हो रही हैं, हम उम्रे बड़े कर रहे हैं? नहीं पुत्र, बड़ी दूर से आया हूँ, भाई हूँ आपका, बस एक पैगाम लेके आया हूँ पुत्र, अमल की तरफ आओ हज़रत, अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ हज़रत, मस्जिद जाओ, नमाज की तरफ आओ, मुहब्बतां करो, प्यार करो, कौम बनो, और चले हो जिन्हां नाल लड़ना है उन्हां नाल लड़न दी तैयारियां करिए, वो आपस ही लड़न दे दे। इकबाल दुआइयां देता रहा, हो हल्काए यारा तो बरे शम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन असी एक दूजे नाल, गुजर ने जट दा ते जट ने गुजर दा गलमा पढ़िया, जिन्हां दे फड़ने सानू दंदन आंदे फिरन दे। मोदी की बातें सुनो है ये इतने जोगा। मैं तो कहता हूँ मोदी तेरे मुंह से तो लफ्ज़ पानी वैसे ही नहीं सोना लगता, तेरे तो हिस्से में आया ही पेशाब है। तू तो वो मनूस है जो सुबह उठ के सबसे पहले गां का पेशाब पीता है। तू तो अपना मुंह भी गोए से धोता है, तू तो अपना सर भी गोए से धोता है, तेरी इतनी हिम्मत तू हमें। लेकिन क्योंकि साढ़े भी तिलों में तेल, उन्होंने भी पता है कि असी किस पोजीशन च खड़े हैं, उनको भी पता है कि ये किस पोजीशन में खड़े हैं। ये एक दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिन्हां नाल लड़ना सी लड़ सकते, इन्हां दे हथ जिदू पैंदे ने एक दूसरे दे गलमे नूं पैंदे, क्योंकि उसकी इतनी जरूरत। पुत्र सिर्फ साड़ियां तिलों च तेल होए, सिंध की बात तो बहुत दूर, हम उनको रावी का एक कतरा ना रोकने दें, रावी च त्रोपा पानी नहीं है। हम उनको सतलुज का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, लेकिन सतलुज में पानी का नामो निशान कोई नहीं है हजरत। हम उनको चनाब का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, हम उनको दरिया नीलम का एक कतरा ना रोकने दें हजरत। सारे दरियाओं का पानी उन्होंने रोक लिया हुआ है। वजह की किसी कौम बन सके, ऐसी कौम बन सके। ये मैं आखिरी बात अब करने लगा हूँ मौलाना रूम की कोट फतह। देखो मौलाना रूम क्या एंड जी, बस आखिरी, और फिर आपने मुझे रास्ता देना है क्योंकि मैंने फैसलाबाद पहुंचना है। बस जल्दी जल्दी से मैं सुना के निकलिए। बस ये मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बंदा था तो उसने काम बड़े शुरू किए। उसने काम बड़े शुरू, लेकिन चले आ तंग आ गया। उन्हें कहा भाई तू चलता ही कोई नहीं, तो फिर वाह अल्लाह अल्लाह करया करो, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया ही। जंगल चला गया, तस्वीर किसी को मंग ली, तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। रोटी चलती रही, रोटी तो नहीं पुत्र कभी किसी की रुकी है। रोटी तो जेडे अग पूजते ने मालक ने कभी ओदी भी नहीं रोकी है, तेरी मेरी रोकनी सी। तू मैं अपनी रोटी आप ही रोक ली है, अल्लाह कभी किसी की रोकदा। उन्हें तो पुत्र तेरे बिल्कुल नाल वसते ने, हाँ जी। थोड़ी जी मिट्टी लैके किन्ने बुत बना छड़ते हैं उहदे, रब ने तो कभी उन्होंने भी नहीं रोकी है, हाँ जी। वो आस्ता आस्ता जिक्र इलाही ने अपना रंग दिखाया, दिल में सफाई मिली और अल्लाह ना लो लग गई।
इसी तरह साल गुजरते रहे। मौलाना रूम कहते हैं 12 साल मुकम्मल हुए तो एक दिन आवाज़ आती है, ओए बंदिया हर वेले साडा नाम लैंदा रहना, की चाहिए? उन्हें अर्ज़ की रब्बा हुण कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सोने की तलब है। हाँ वेख्या 2 वेले खान नूं मंगदा है, कोई इंज दा सिस्टम कर दे, भुख लगे तो खान नूं लभ जे, बाकी मैं तेरे जिक्र च लगा रहा। हुक्म आया अपने घर जा, जो बर्तन पसंद आए पसंद कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा, जो नीयत करेगा खाना निकलेगा। कर गया, गरीब आदमी सी को पतीली पसंद आई, चुकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोशत दी नीयत की, निकल आया। साथ हुक्म आया था कि कभी कलियाँ खाना नहीं, जिस दिन कलियाँ खाएगा उस दिन बंद, बाकी जितनी देर तक वंड के खांदा रहेगा क़यामत तक तेरा मुकेगा नहीं। साडा भी पुत्र बंद तां ही हो गया, कलियाँ खाने चला गया, हज़रत पतीली फड़ी, गोश्त निकल आया, बाहरों 2 बंदे सदे, रल के खादा। जो भुख लगनी 2 बंदे बाहरों ले आने, पतीली फड़नी, सालन निकलना, आपे भी खाना। मौलाना रूम फरमाते हैं बचपन के दोस्त आ गए मिलने के लिए। अब दोस्त बातें भी करते जाएं और बार बार कहते भी जाएं, भाई अज रोटी तेरे लू खानी है, लेकिन वो वेखन ना आपे गया, ना किसी ने भेजिया, ना अंदर को पकन की खुशबू आन डई। वो एक बेली बोल ही पिया, उन्हें कहा यार तू भुखा मारना सानू, अज तेन किन्नी बारी कहा रोटी तेरे लू खानी। उन्हें कहा परेशान कानू आन डई, नमाज जमात ना पढ़नी, बाकी फिर जो कहोगे मैं खुआवांगा। नमाज पढ़ी वापस आए, एक दोस्त ने पूछा तू की खाएगा? उन्हें कहा कीमा मटर, दूजे नू पालक गोश्त, तीजे नू उन्हें कहा गोंगलू गोश्त। अंदर गया, 3 सालन लैके बाहर आ गया। वो बड़े हैरान हुए, वो एक भी नहीं 3 ताज़ा फ्रैश गर्म धुआं निकलता पे। उन्हें कहा की अंदर? उन्हें कहा पहले खाओ फिर दसांगा, क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई। 2 बुरकियां लाइयां, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश होए, भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो 3 दोस्त उठ के गए, 2 टुर गए झुमरे नूं वापस, तो 1 टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए, उसको भी आवाज़ आई, 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही नाम लैंदा रहना। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो, चाहिए कुछ नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साडा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए ने, असी एक दूजे दी देश की वापस करा, और असी कख भी कीता। असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलियां ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हाँ जी, हुण फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुकी हूँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जड़े जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जड़े रब किसी को पतीली दवे तो यह दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी, अल्लाह एदियां 4 कर दे। अल्लाह एदियां, मैं गारंटी नहीं दिंदा कि तेरे कियां ओदियां 4 हो जाएगी, मर्जी मालकां दी, लेकिन अगली गारंटी देना, चाह कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, सैन करांगा, अंगूठा लावांगा, मोहर भी लावांगा। ऐ नहीं मैं तो कहता कि ओदियां 4 हो जाएगियां, लेकिन यह गल पक्की है तेरियां 8 हो जानियां नहीं। लेकिन असी की कीता, असी ओदी भी एक खुआ छड़ी ते अपनियां भी 8। असी कौम नहीं बन सके पुत्र। इकबाल ने कहा था सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का पुत्र। बल्कि केड़ा केड़ा मैं रोना रोवा हज़रत साहब नाकाम हुए। होना की चाहिए ही, जेड़े हालात बने दे ने रोंदे हज़रत, सारी सारी रात इन्होंने नींदर ना आती, बड़ा की दुआवां करदे, या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, लेकिन उम्मत दुआवां की कर दी, या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना, मैं विआह करांगा, मैं याने जमांगा, सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना तारक बिन ज़ियाद भेज, मैं बनना मोहम्मद बिन कासिम भेज, मैं बनना नूरुद्दीन जंगी भेज, मैं बनना टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना, क्योंकि शौके जिहाद पैदा करन च सी। हर सब किन्ने हालात खराब ने, जिन्हों के जंग के हालात बने ने, तुसी भी बड़ियां महफिल अटेंड कीतियां होणगियां, कोई साडा कलाम बदलिया? असी उत्थे ही हाँ, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चढ़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया। उत्थे जंग बूहे खलोती, ये गुड्डियां चढ़न डईयां ने,
कख भी अल्लाह सानू माफ़ कर दे जो किया जो सुनिया अल्लाह उन्हें कबूल करे पुत्र खुदा दा वास्ता जी आंदे बहुत तमाशा किया तुसी ते तौबा भी करियो दे ते माफ़ी भी अल्लाह को मंगियो ते हुण जान लगे ना करियो पुत्र मैनू हथ लाया कख भी नहीं होना वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात नमाज पढ़नी पैनी है दाढ़ी रखनी पैनी है फिर कर्म होना है इंज कुछ भी होना नहीं बुजुर्ग मौजूद हैं सलाम पढ़ा जाएगा दुआ मैं बैठता लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतज़ार है मैं लेट हूँ हजरत फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को मौका लाएगा कोई प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा जुमरे का तो जहाँ से सबक छोड़ा है मैं कोशिश करूँगा फिर वहाँ से आके सबक शुरू करूँगा इसलिए पुत्र अमल की तरफ 5 नमाज़ां पूरी हैं ठीक है पक्का हो गया 5 नमाज़ां हाथ खिलार के एक बारी है वमा अलैना इल्लल बलागुल